Hi friends, namaste, namaskar. Today we are going to talk on tobacco. Why? Why tobacco? Because it is 31st May and as we all know, it is World Tobacco Day. It should have been actually World No Tobacco Day, but it's sometimes called World No Tobacco Day, sometimes called Tobacco Day. You know how these days are. But what is important is the message. The message is that we need to create awareness about tobacco. And why is tobacco so important? I mean, when as kids we used to look at tobacco either with excitement or with disgust or with just plain simple ignorance. I mean, you used to just ignore it. Somebody smoking, it used to be so common. I mean, as a child, I remember even in a bus, whether you are sitting in a cinema hall, somebody used to light up, nobody used to care. So it now it's such a big deal. But and I think that's a good change that has occurred. Tobacco causes several effects, and most of them are, or I would say rather all of them, unless you are a person who actually deals in tobacco or sells tobacco or makes money out of tobacco, it's most of the effects are negative. Why are they negative? They are negative on several levels. Let me say, a lot of times we look at tobacco as only a health problem. Okay, smoking tobacco causes cancer, smoking tobacco causes lung disease, smoking tobacco causes heart attacks. Yes, smoking is an health hazard. Tobacco is a health hazard. Smoke less tobacco, as they call it. I think that's a very fancy name given to gutka. But gutka also is a health hazard. What does it cause as a health problem? Yes, it causes, you can have because of tobacco. Now, cigarette smoking, for example, contains 7,000 chemicals. 7,000 chemicals, folks, not a joke. 7,000 chemicals go into that cocktail that gives you nasha. And out of them, 70, remember, 70 of them can cause cancer. So, tobacco can cause cancer, smoking can cause cancer, smoking can cause heart attacks because it affects the blood vessels in the heart. Smoking obviously causes lung disease. A person who smokes continuously can just blows his lungs to smith screens. Remember, the lungs are delicate things, yeah. They're so delicate. So you have to really be a medical student, stand in the dissection halls and see how the lungs are made. Very delicate things. Nature has made them so beautifully. It is one of the best air exchange mechanisms. No man has been able to replicate it. There is just a thin one cell layer thick membrane separating your insides from the world. That's all. And yet we do not get infected, yet we do not get affected most of the time. And it takes loads of cigarettes to actually damage your lungs. But we do not pay respect to the Almighty's creation, do we? We just want to abuse it right, left, and center. जैसे हम लोगों को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि बाबा क्या फर्क पड़ता है, विंस्टन चर्चिल तो 92 साल तक जिया, वो तो हमेशा सिगरेट पीता था। भाई, विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन को नाजियों से बचाया, आपने कौन सी बड़ी कौन से तोहफे झाड़े हैं। लेकिन that is not for us to him. We will look at the bad sides and we will take the bad examples of everybody. So basically, what tobacco does, it causes changes in the lungs like emphysema. You know what happens in emphysema? जैसे हमारे फेफड़ों में हमारे छोटे 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 चेम्बर्स रहते हैं, इन चेम्बर्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है स्मोक, और स्मोक डिस्ट्रॉय करके वो एक बड़ा बलून बन जाता है जिसमें ना एयर एक्सचेंज होता है, ना जिसमें कुछ खून की सर्कुलेशन होती है, एयर प्यूरिफाई नहीं हो सकता, और इसीलिए ऑक्सीजन की कमी शरीर को महसूस होती है। इट कॉसेज ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस यानी क्या होता है? एक बीमारी जो अपने विंड पाइप की बीमारी होती है। तो वहां पे भी यही होता है कि जो विंड पाइप के जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो ऐसे दिखता है मानो कि एक बी हनीकॉम्ब हो, जैसे अपने मधुमक्खियों का जो ये रहता है, हाइव रहता है, वैसे वो हाइव जैसे दिखता है। तो तीसरा, इट कैन कॉज कैंसर। नाउ स्मोकिंग कॉजेज कैंसर ऑन मल्टीपल लेवल्स। जब भी हम सोचते हैं कि स्मोकिंग कौन सा कैंसर कॉज करता है, तो स्मोकिंग कॉज करता है लंग कैंसर। लेकिन आप आप जानते हैं कि स्मोकिंग कितने प्रकार के कैंसर कॉज कर सकता है? राइट फ्रॉम नोज, ये साइनसेस, थ्रोट,
लंग्स, विंड पाइप, इसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक, पैनक्रियास, पैनक्रियास का भी कैंसर कॉज होता है लंग से, किडनी, किडनी का भी कैंसर कॉज होता है, और फाइनली वो यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब के रास्ते का भी कैंसर इससे होता है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक लंग्स की बीमारी नहीं क्रॉस करता, शरीर में पूरी तरह से उसके इफेक्ट होते हैं। इसी तरह स्मोकिंग हार्ट पे भी असर करता है, जैसे कि उसके हार्ट अटैक के प्रमाण बढ़ते हैं, जैसे उससे अपने ब्लड वेजल्स की बीमारियां बढ़ते हैं, जैसे वो अपने ब्लड वेजल्स में डिपॉजिट्स होते हैं। आपने सुना होगा कि ब्लड वेजल्स में तो फैट के डिपॉजिट्स होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, ऐसे एक ब्लड वेजल्स होते हैं। हम देखते हैं ना कि सर्जरी करते वक्त हम जब वो ब्लड वेजल को पकड़ते हैं, वो पकड़ा ही नहीं जाता, वो दबता ही नहीं है, क्योंकि उसके एकदम कड़क वो टूटता है, एक्चुअली टूट सकता है, इतना वो हार्ड हो जाता है कि जो जो सिगरेट स्मोकर्स में या बहुत ओबीस पर्सन में वो ब्लड वेजल होता है। तो बहुत बहुत लेवल्स पे ये अफेक्ट करता है। तीसरा चीज होता है कि जब स्मोकलेस या गुटखा जो कहते हैं, गुटखा का जो असर होता है वो कैसे होता है, तो गुटखा या पान के जो जो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, आजकल बड़ी फैशन निकली है कि पान मसाला हम लोग बेच रहे हैं, ये सब फिल्म एक्टर्स जमा होकर पान मसाला बेचने निकले हैं, क्योंकि गुटखा तो बेच नहीं सकते तो पैसा कैसे कमाए, तो इनको तो पैसा कमाना है, इनको तो फर्क नहीं पड़ता कि भाई जनता की आवाम की जो जो हेल्थ है, जो आरोग्य है, उसके बारे में तो उनका ख्याल तो है नहीं। तो बेसिकली वो पान मसाला बेचते हैं। पान मसाला में भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो जो उसमें यूज किया जाता है, जैसे सुपारी हो, जैसे चूना हो, ये सब चीजों के वजह से भी कैंसर होता है। इन सब चीजों भी हानिकारक होती हैं। अब ये कैसे हानिकारक होती है कि जैसे सुपारी के वजह से आपने देखा होगा कि लोगों को मुंह नहीं खोल सकते, जिसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है, कि सफेद दाग आ जाते हैं मुंह में, वो सुपारी की वजह से होता है। हाँ, एक त्रिवेंद्रम में बहुत अच्छी स्टडी हुई थी रीजनल कैंसर सेंटर में, कि जहां पे ये दिखाया गया कि आम सुपारी से भी कैंसर हो सकता है, उसको तंबाकू की जरूरत नहीं है, टोबैको की जरूरत नहीं है, अपने आप से वो कैंसर बना सकती है। तंबाकू उसमें जब ऐड होता है तो उसमें उसमें वो जो शक्ति है कैंसर बनाने की, वो द्विगुणित नहीं, मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि एक और एक दो नहीं होता, एक और एक 11 हो जाता है तभी। और इसीलिए जो लोग गुटखा लेते हैं उनमें ये परेशानी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गुटखा में और एक चीज होती है, उसमें बहुत सारे केमिकल, जैसे सिगरेट में 7,000 केमिकल्स है, गुटखा में भी बहुत केमिकल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो आप देखते हैं कि जो अपने फूड स्टफ्स में या खाने के पदार्थों में 0.07% से भी कम होना चाहिए, वो गुटखा में 7% तक होता है। दूसरी चीज, जो एक्चुअली केमिकल ड्राई, आपने देखा होगा कि कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ऐसे छोटी छोटी ये रखी जाती हैं जिससे कि वो मॉइस्चर खींच लें, उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, तो वहां पे लिखा रहता है कि ये खाने के लिए नहीं है, लेकिन गुटखा खाने वाले उसे आराम से अंदर ले लेते हैं, और परिणाम ये होता है कि उससे कैंसर होता है। तो बेसिकली गुटखा से भी कैंसर होता है। गुटखा से कैंसर जो होता है वो मुंह का कैंसर होता है, मसूड़ों का कैंसर होता है, जो फूड पाइप है, अन्न नलिका है, उसका कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, ये सब चीजें गुटखा के वजह से होती हैं। वैसे ही अन्य प्रकार के, जैसे आजकल तो कम दिखता है, लेकिन मुझे याद है कि मेरे दादाजी के टाइम बहुत सारे लोग तपकीर लेते थे, तब जो स्नफ बोलते हैं, तपकीर बोलते हैं, जो नाक में स्मेल किया जाता था, तो उससे नेजोफेरिंग्स यानी जो पहली सांस खाने की नली की जो शुरुआत है, जहां पे विंड पाइप जो सांस का रास्ता है और खाने का रास्ता है वो एक रहते हैं, वो नेजोफेरिंग्स जो रहता है उसमें उसके उसका जो उस लेवल उस एरिया का कैंसर उसमें उन लोगों में कॉमन था। साइनसिस का कैंसर कॉमन था। तो ये सब चीजें जो रहती है वो अलग अलग प्रकार के जो तंबाकू रहते हैं अलग अलग प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तीसरा चीज होता है कि क्या सिर्फ तंबाकू खाने वाला
या तंबाकू का सेवन करने वाला को ये परेशानी होती है? ऐसा है क्या कि जो मरने वाला है वो तो मरेगा, बस वो और उसका उसका कर्म जाने, वो अपने कर्मों का फल खाएगा? क्या इतना ही सच है? नहीं दोस्तों, ये सबसे और बुरी बात है कि स्पेशली स्मोकिंग में इसका परिणाम जो है वो उसकी पूरी आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उन सब पे परिणाम होता है। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं इस वजह से? ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन पीपल in India alone. There are 41,000 people who get affected, who die because of second hand smoking. 400 children die of second hand smoking. The incidence of deaths in pregnancy, nearly 1,000 births are aborted. 1,000 बच्चे जन्म ही नहीं ले पाते, अपनी माँ की कोख को छोड़ नहीं पाते, बिकॉज वो सेकेंड हैंड स्मोक लेते हैं, बिकॉज उनके आजू बाजू में या खुद माँ स्मोकिंग कर रही है। तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग एक बहुत बुरी चीज है कि जो आदमी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता वो उस चीज के दुष्परिणाम सहता है, क्योंकि वो किसी तंबाकू सेवन करने वाले के आजू बाजू में रहता है। ये एक दर्दनाक चीज है कि इतने सारे लोग खामखा ये बीमारी झेलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनका गुनाह यही है कि वो किसी किसी स्मोकिंग करने वाले की पत्नी है, या स्मोकिंग करने वाले की बच्चे हैं, या स्मोकिंग करने वाले की के पति है, या उसके घर के आजू बाजू में रहते हैं। तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट कर्सेस ऑफ मैनकाइंड। तो उसके वजह से नाहक जाने जाती हैं। तो ये वो भी स्मोकिंग करता है कि जो लोग स्मोकिंग के बिना रहते हैं तो उनके ऊपर भी ये परिणाम होता है। तीसरा चीज होता है कि हमको लगता है कि स्मोकिंग का जो परिणाम है सिर्फ हेल्थ तक सीमित है, जैसे मैंने कहा। नहीं दोस्तों, स्मोकिंग का परिणाम इसके आगे जाता है। अभी इसके आगे कैसे जाता है? तो इट इज अ बिग थ्रेट टू द एनवायरमेंट। हमारा जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण पे भी इसका परिणाम होता है। ये कैसे होता है? आपने कभी सोचा है कि जब सिगरेट बनती है तो कितने सारे पेड़ काटे जाते हैं, कितना सारा पानी जाता है, कितना सारा गार्बेज क्रिएट होता है? डब्ल्यूएचओ ने अनुमान लगाया है कि 600 मिलियन ट्रीज 6 करोड़ वृक्ष काटे जाते हैं ताकि कोई अपना कष्ट ले सके। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है कि 6 करोड़ वृक्ष काटे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग वृक्ष बचाओ, ट्रीज आर माय फ्रेंड्स, ये सब स्लोगन्स लगाते हैं, और केवल सिगरेट के लिए इतने सारे वृक्ष काटे जाते हैं। तंबाकू का जो प्लांटेशंस है उनके वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। कि आप जानते हैं तंबाकू एक कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप्स को बहुत सारा पानी लगता है, तो वो पानी ड्रैग होता है। जहां पे आज भारत जैसे देश में, या आज आप जानते हैं कि अपने नेबरिंग देश जो श्रीलंका है, वहां पे फूड प्रोडक्शन कम हो गया है। वहां पे बाकी सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो है ही, लेकिन फूड प्रोडक्शन भी कम हो गया है। सभी जगहों पे जब खाने की मात्रा कम है, एडिबल ऑयल हमारे देश में कम बनता है, लेकिन पानी की मात्रा लेने वाला ये टोबैको क्रॉप बहुत नुकसान पहुंचाता है। तीसरा चीज होता है गार्बेज। क्या आप जानते हैं कितना पैसा जाता है सिर्फ सिगरेट? ऑलमोस्ट 4.5 ट्रिलियन स्टब्स are thrown into our oceans, into our rivers, into our landfills every year. ये सब सिगरेट जो फूक के जो नीचे फेंकते हैं वो कहाँ जाता है? कभी सोचा है वो कितना होता है? तो वो निकालने के लिए वी आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ रुपीज। चाइना स्पेंड्स नियरली 2.4 बिलियन, इंडिया स्पेंड्स नियरली 1.6 बिलियन, एंड दीज आर नॉट फिगर्स ऑफ माय हेड, दीज आर डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट्स। कि इन्होंने स्टडी की है कि भाई इतना सारा पैसा आप सिर्फ उड़ा रहे हो क्योंकि
एक आदमी अपनी खुद की जान ले रहा है स्मोकिंग करके, ये सोच के कि मैं अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकूं। अरे भाई, तुम्हारे स्ट्रेस रिलीव करते करते दुनिया स्ट्रेस में आ गई है, ये हमको सोचना जरूर। तो इट इज नॉट ओनली हेल्थ, इट इज एनवायरमेंट ऑल्सो, इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक। बिकॉज जब हेल्थ अफेक्ट होती है तो एनवायरमेंट अफेक्ट होती है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स अफेक्ट होता है। तो आप सोचिए कि जब जो गुटखा खाने वाला जो आदमी है वो कभी अपनी आदत पिकअप करता है, जो सिगरेट पीने वाली व्यक्ति है वो कभी अपनी आदत पिकअप करती है। तो ये अनुमान, ये जो स्टडीज हुए हैं सब, तो उसमें मीडियन एज 10 साल के पहले उन्होंने तंबाकू का, नियरली 38% चिल्ड्रन हैव टेकन देयर फर्स्ट टोबैको बिफोर द एज ऑफ 10। तो ये एडल्ट नहीं है। वो जो सिगरेट पैकेट पे लिखा रहता है कि 18 साल के ऊपर हम तंबाकू नहीं देंगे, 21 साल के ऊपर हम लोग ये नहीं करेंगे, ये बाकायदा झूठ है। 10 साल के उम्र के पहले 40% लोगों ने, 40% बच्चों ने अपना पहला तंबाकू सेवन किया होता है। हालांकि एक वन रे ऑफ होप जो बोलते हैं, जो एक अच्छी बात हुई है, तो उसमें अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें दिखाया गया है कि स्कूलों में जो तंबाकू का सेवन है वो 42% से कम हुआ है। हालांकि अपने को पता नहीं रहता ये सर्वेज में कैसे सर्वे किए जाते हैं और ये फिगर्स कैसे आते हैं, लेकिन फिर भी ये एक आशा की किरण है। लेकिन उसमें उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 38% पिकअप दिस हैबिट बिफोर द एज ऑफ 10। तो आप सोचिए, जब कोई ये 10 साल की उम्र के पहले ये आदत पिकअप करता है, तो ये आदत कितनी डीप उसके साइकी में जाती है, कितना वो अपने, उसके जो रूट्स हैं, उस वो मूल है, वो कितने डीप गए होंगे, उसके अंतरंग में कितने रहेंगे। इसीलिए वो गुलाम बन जाता है तंबाकू का, और गुलाम बनने की वजह से वो कुछ भी करने को तैयार रहता है इस तंबाकू के लिए। उसमें उसका आर्थिक परेशानी में आ जाता है। और ये ये, ये जब इस उम्र में वो सिगरेट की या तंबाकू की लत पिकअप करता है, तो उसमें रिजल्ट ये होता है कि 30 या 40 साल की उम्र तक उसके मुंह में उस चेंजेस आ गए रहते हैं, जो कैंसर के चेंजेस रहते हैं। स्पेशली गुटखा में हमने देखा है कि 30-35 साल तक लोगों को कैंसर हो जाता है, बहुत सारे लोगों को। आज ही मैंने एक 28 साल के लड़के को देखा कि जिसके मुंह में कैंसर आ गया था। और गुटखा का कैंसर ज्यादा एग्रेसिव रहता है, ये हमारे अनुभव। और उसके वजह से ये होता है कि एक प्रोडक्टिव एज ग्रुप जो अपने राष्ट्र के बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके, उससे वो राष्ट्र वंचित हो जाता है। क्योंकि एक 30 साल का लड़का, 40 साल का लड़का अपने अपने यूथ के एक पीक प्रोडक्टिव एज में रहता है, वो अपने देश को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसके ऊपर उसके डिपेंडेंट्स होते हैं, उसका परिवार होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। वो उम्र में उसके बच्चे छोटे होते हैं, उसका उसके फ्यूचर उसके आगे रहता है, उसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। और ऐसे उम्र में जब कैंसर हो जाता है, तो उससे उसका ये पूरा, उससे तो छीन जाता ही है, लेकिन पूरे राष्ट्र से वो छीन जाता है, समाज से छीन जाता है। और इसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, इंडिविजुअल लेवल पे उसके ट्रीटमेंट पे खर्चा होता है। और आप जानते हैं कि कैंसर के सर्जरीज मेजर सर्जरीज होते हैं, और इन सर्जरीज में, ट्रीटमेंट में जो खर्चा होता है, उससे वो परिवार पे काफी बड़ा लोड आ जाता है। तो एक प्रिवेंटेबल कैंसर, जिस कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सके, वो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन कर देता है, इतनी बड़ी बर्बादी कर देता है, केवल वो इंडिविजुअल की नहीं, उस पूरे समाज की। क्योंकि हम लोग उसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहे। इसीलिए ये वर्ल्ड टोबैको डे का महत्व है। ये
हम लोग जब प्रॉब्लम्स के बारे में बोलते हैं तो हम लोगों को सॉल्यूशंस के बारे में भी सोचना चाहिए। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो सॉल्यूशंस में बेसिकली सबसे उसका जो रूट है, जिधर प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन के बारे में हमने सोचना चाहिए कि जो टोबैको प्रोड्यूस करने वाले किसान हैं, तो उनको हम लोग रोजगार कैसे दें? टोबैको एक कैश क्रॉप है, टोबैको से कमाई बहुत अच्छा होती है, तो इसीलिए ये लोग कंटिन्यूअसली टोबैको प्रोड्यूस करते रहते हैं। उनमें एक अवेयरनेस हमको जगाना चाहिए, उनको हमने ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स के बारे में बताना चाहिए। ये चीज हम लोगों को एक समाज के तौर पे हमको करनी चाहिए। दूसरी चीज होती है कि स्कूलों से शुरुआत होनी चाहिए कि तंबाकू का स्कूलों में ये सिर्फ इतना काफी नहीं है कि इतने डिस्टेंस पे तंबाकू की गाड़ी नहीं लगनी चाहिए, इतने इतने लोगों को तंबाकू बेचना नहीं चाहिए इस उम्र के नीचे। ये सब बोलचाल की बातें हैं, इससे कुछ होता नहीं। जो लोग लेते हैं उन बच्चों में ये अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए। हम लोग स्कूल्स में जाके हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको अनिल कैंसर क्लिनिक की तरफ से गोपाल कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से स्कूलों में जाके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे तंबाकू की सेवन से जो दुष्परिणाम होते हैं वो बच्चों को समझाएं। खास करके 8th 9th 10th के बच्चों को समझाया जाए, जो बच्चे इस आदत से लगने के सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं, सबसे ज्यादा टेम्पटेड रहते हैं, तो उन बच्चों को ये समझाया जाए कि तंबाकू कितना हानिकारक है और किस किस लेवल पे हानिकारक है। तीसरी चीज, जो ऑफिसेस हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी समझाया जाए। आजकल महिलाओं का तंबाकू सेवन बढ़ रहा है, उससे और दुष्परिणाम होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अबॉर्शंस की रेट बढ़ती है, जो अनबॉर्न फीटस है उसमें एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होते हैं। तो इन सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। जो स्मोकर्स हैं, वो स्मोकर्स को हम लोगों को वो आदत छोड़ने के लिए टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स हम लोग करते हैं, कि जहाँ पे काउंसलर्स रहते हैं, जहाँ पे उनको ऑल्टरनेटिव्स, निकोटिन ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं। इन सब चीजों का उपयोग करके हम लोग एक कोशिश करते हैं कि उनकी आदत छूट जाए। मोटिवेशनल टॉक्स रहते हैं जो विल पावर बढ़ाएं और तंबाकू छोड़ने के लिए उनको एक मोटिवेट करें, उनको एक एनकरेज करें। क्योंकि तंबाकू, हम लोग सोचते हैं कि तंबाकू छोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं भी ये सोचता था, लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जिस दिन आदमी को कैंसर होता है, जिस दिन, उस दिन से वो तंबाकू का हाथ नहीं लगाता। हालांकि ऐसे भी पेशेंट है जो ठीक होने के बाद वापस चालू कर देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जिनका स्वर यंत्र तंबाकू सिगरेट पीने की वजह से निकल गया है और यहाँ पे सांस के लिए एक होल है, वो भी सिगरेट यहां से स्मोक करते हैं। तो आदत बुरी है, जाती तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब वो डायग्नोसिस होता है तो डायग्नोसिस के टाइम वो लोग तंबाकू को छोड़ देते हैं। तो ये मानसिक लेवल पे ये चेंजेस होते हैं। मानसिक लेवल पे वो विल पावर अगर हम लोग जनरेट कर सके तो तंबाकू छूटने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी विल पावर। ये विल पावर को बढ़ाएं। आप जानिए कि आपकी जो आपके आगे जो जिंदगी है वो कितनी रोशन है, उसको तंबाकू के धुएं में बर्बाद ना करें। ये अवेयरनेस अगर हम लोग हमारे यूथ में क्रिएट कर सके तो मैं मानता हूं कि ये वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करने में कोई मतलब है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ पेशेंट लिसन। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमको जरूर लिखिए, हमारे ईमेल्स एड्रेस इस वीडियो के अंत में है, तो हमें जरूर लिखिए, हमें बताइए। हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा सतर्क हैं। नमस्कार।